بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخری ٹرین کب کی جا چکی تھی؟ اسٹیشن تقریباً خالی پڑا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ خالد کی پوسٹنگ ابھی کچھ ہی مہینے پہلے اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر کے طور پر ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ خالد ایک آخری چکر اسٹیشن کا روز لگاتا تھا۔ حالانکہ اسے پتہ تھا کہ اب اسٹیشن پر کوئی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ حسب معمول اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ سارا اسٹیشن خالی پڑا تھا، حتیٰ کہ اسٹیشن پر موجود اس کے ساتھ دفتر کا چوکیدار اور اس کا لڑکا بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ خالد نے دیکھا کہ اسٹیشن کے سب سے آخری بینچ پر کوئی عورت کالی سی چادر میں لپٹی پٹریوں کو گھور رہی ہے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس وقت اس عورت کا یہاں کیا کام۔ پھر اس نے دور ہی سے آواز لگائی، او بی بی، کون ہو تم؟ ٹرین کب کی جا چکی ہے؟ اب کل 11 بجے سے پہلے کوئی ٹرین یہاں سے نہیں گزرے گی۔ ابھی گھر جاؤ، صبح آنا۔ یہ باتیں خالد نے وہیں کھڑے کھڑے اونچی آواز میں اس عورت سے کہیں۔ وہ حیران تھا اور کچھ پریشان بھی کہ اس وقت اس عورت کا یہاں کیا کام۔ بہرحال اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اب جا کر آرام کرے۔ وہ جو بھی ہوگی اس کی آواز سن کر واپس چلی جائے گی۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف واپس جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت آہستہ آہستہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلی رات خالد جب دوبارہ رات کو حسب معمول اسٹیشن کا چکر لگانے کے لیے باہر نکلا تو کل والی عورت اس کے ذہن پر بالکل نکل چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اسٹیشن پر دور تک نگاہ دوڑائی تو اسے کل والی بینچ پر پھر وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ ٹھٹک گیا اور پھر دور ہی سے چلایا، او بی بی، کون ہو تم؟ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تھا، وہ عورت آہستہ آہستہ چلتی پھر واپسی کے راستے کو کھولی۔ وہ ڈر سا گیا اور جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن اس نے چوکیدار اور اس کے بیٹے سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو کچھ ایسا دیکھا نہیں۔ جب لگاتار چوتھی رات کو بھی یہی واقعہ پیش آیا تو خالد نے پکا ارادہ کیا کہ وہ آج آگے ضرور جائے گا اور اس عورت سے روزانہ یہاں رات کے اس پہر آنے کی وجہ پوچھے گا۔ خالد بزدل تو نہ تھا، لیکن پھر بھی کچھ خوف سا محسوس کر رہا تھا۔ چوکیدار اور اس کا لڑکا کب سے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، اسی لیے اس نے سوچا کہ ان میں سے کسی کو جگانا بیکار ہے۔ کیا ہوا، وہ ایک عورت ہی تو ہے، اور پھر وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی۔ یہی سوچ کر وہ آہستہ آہستہ اس عورت کی طرف بڑھنے لگا کہ آج پاس جا کر اس عورت سے بات کی جائے۔ وہ اس وقت اسٹیشن پر کیوں آ جاتی ہے اور اس کی آمد کی وجہ پوچھی جائے، جبکہ ٹرین کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ اس عورت سے کچھ فاصلے پر پہنچا تو ایک دم سے اٹھی اور پیچھے مڑ کر خالد کی طرف دیکھا۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر نقاب تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، مگر جیسے ہی خالد نے اس عورت کو مخاطب کیا وہ ایک طرف کو چلنے لگی اور بہت عجیب اور بھاری آواز میں خالد کو پیچھے آنے کا کہا۔ خالد کو ایسے لگا جیسے وہ انکار نہیں کر سکے گا۔ وہ سحر زدہ سا ہو کر اس عورت کے پیچھے چلنے لگا۔ خالد نے بہت کوشش کر کے صرف اتنا کہا، سنو تو، کہاں چلنا ہے، مگر وہ رکی نہیں۔ خالد بھی اس کے پیچھے چپ چاپ چلتا رہا۔ جانے کون کون سے راستے طے کرتی وہ لڑکی ایک حویلی کے پیچھے بنے ملازموں کے ایک کوارٹر کے اندر چلی گئی۔ خالد جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے اس کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ یہ ایک خالی کمرہ تھا جس میں زیرو کے بلب میں ہلکی سی روشنی تھی اور ایک کونے پر زمین میں ایک بستر لگا تھا جس پر میلی سی شکن زدہ سی ایک چادر پڑی تھی۔ رات تقریباً آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی خالد سے پہلے کمرے میں داخل ہوئی تھی، لیکن جب خالد کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں بلب کی زرد روشنی ہو رہی تھی۔ دور کہیں گاؤں کے کسی گھر میں مرغے کی پہلی بانگ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی خالد کے سر پر چھایا سحر بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے سر کو ایک دو بار ادھر ادھر جھٹکا اور الٹے قدموں واپس بھاگا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے پھاٹک سے باہر آیا اس نے حویلی کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ تو چودھری نور الہی کی حویلی ہے، جو مانگپور کا بڑا خدا ترس اور نیک دل چودھری ہے۔ اس کے چاروں بیٹے بھی بظاہر بہت اچھے اور ملنسار تھے۔ بہرحال خالد کچھ کھویا کھویا سا اسٹیشن واپس آ گیا، لیکن سارا دن بہت پریشان رہا۔ اس نے چوکیدار اور اس کے بیٹے سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا۔
हालांकि करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों वो चाहकर भी कुछ कह न सका। खालिद ने फैसला कर लिया कि अब वो रात को भाई स्टेशन पर मामूल का चक्कर लगाने नहीं जाएगा। पर पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी वो फिर रात को बाहर निकल आया और इस तरफ देखते हुए डर रहा था जहाँ वो औरत बैठी थी। गैर दानिस्ता तौर पर वापस मुड़ते हुए जब इसकी नज़र इस बेंच पर पड़ी तो इस बेंच पर आज कोई नहीं था। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो नहीं आई और लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ आ गया। मगर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि कमरे में पड़ी कुर्सी पर दोनों हाथ गोद में लिए वही औरत बैठी है। खालिद के हलक से एक दिल खराश चीख बरामद हुई, लेकिन इस सुनसान स्टेशन पर इसकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा जो दो अफराद थे वो रात होते ही चले जाते थे और फिर सुबह ही अपना मुंह दिखाते। इसने खालिद की चीख का कोई नोटिस न लिया और वो खालिद वहीं बैठे बैठे कहने लगी, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद दरकार है, एक ऐसा काम जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। खालिद वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा और थूक निकल कर बोला, कौन सा काम? तुम कौन हो और इस दिन तुम कमरे में मुझसे पहले दाखिल हुई थी, लेकिन जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो तुम वहाँ नहीं थी। तुम मुझे वहाँ क्यों लेकर गई थी? वो औरत हाथ उठाकर बोली, तुम्हारे इन सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती। बस इतना कहूँगी कि तुम्हें चौधरी नूर इलाही के बेटे दिलावर से मेरी बर्बादी का बदला लेना है, और कैसे लेना है कि मैं तुम पर छोड़ती हूँ। लेकिन इसने किया क्या है? वो तो चारों भाई बहुत खुदा तर्स और नेक इंसान है, खालिद ने कहा। हाँ, लेकिन चारों उंगलियां बराबर भी तो नहीं होती। इस औरत ने खालिद की बात काट कर सख्त लहजे में कहा, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? पुलिस में बताओ या अपने घर वालों को? यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। अब मेरी बात गौर से सुनो। खालिद को इसकी वीरान और उदास आंखों से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मेरा नाम बानो है, इसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। चौधरी दिलावर मुझे अपने प्यार के झूठे चाल में फंसाकर शादी के झूठे ख्वाब दिखाए और एक दिन मुझसे इस कमरे में जहाँ मैं तुमको लेकर गई थी मेरा सब कुछ छीन लिया और दूध में जहर मिलाकर मुझे पिला दिया। जहर तुम्हें? लेकिन तुम तो जिंदा हो। जिंदा? मैं तुम्हें जिंदा नजर आ रही हूँ? क्या जिंदा लोगों की आंखें ऐसी वीरान और उदास होती हैं? क्या जिंदा लोग मेरे जैसे होते हैं? वाकई इसकी आंखें बहुत उदास और वीरान थी। लेकिन चौधरी दिलावर तो आजकल बीमार है और सुना है कि चौधरी साहब इसका अच्छे से अच्छा इलाज करवा रहे हैं। वो कभी ठीक नहीं हो सकता, मानो चीख कर बोली। जब तक मेरी रूह को करार नहीं मिल जाता, ये सब कैसे करना है कि मैं तुम पर छोड़ती हूँ। खालिद ने देखा कि बानो के चेहरे पर अभी भी नकाब था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और वो आंखें बहुत ही अजीब सी थीं। इतनी वीरान और उदास आंखें खालिद ने सच में पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? खालिद ने कहा। वो बड़े लोग हैं, मैं एक मामूली सा स्टेशन मास्टर। मेरी यहाँ कौन सुनेगा और कौन मेरी बातों पर यकीन करेगा कि चौधरी नूर इलाही के बेटे दिलावर ने किसी बानो नामी लड़की का कत्ल किया है? खालिद ने बेचारगी से हाथ मलते हुए कहा। लेकिन बानो फुनकारती हुई कुर्सी से उठ खड़ी हुई। खालिद घबराकर 2 कदम पीछे हो गया और दीवार से लग गया। यही तो तुम्हें सोचना है, तुम पढ़े लिखे हो और समझदार भी। मुझे यकीन है तुम मुझे ज़रूर इंसाफ दिलाओगे। बानो कमरे की खुली खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अंधेरे में घूरने लगी। मेरे बाप का नाम फैज़ मोहम्मद है, जो चौधरी नूर इलाही के करीब मज़ारा और कम्मी है, बानो ने कहना शुरू किया। बानो की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे बानो की रूह के अंदर ही अंदर कहीं तोड़ फोड़ हो रही है। मेरी माँ चौधरी के घर काम किया करती थी। मैं एक छोटी बहन सनोबर, हम दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि हम दोनों जुड़वा हैं। मुझे सनोबर से बहुत प्यार था। एक दिन माँ मुझे भी अपने साथ चौधरी के घर काम पर ले गई। मैं मालकिन के कमरे की सफाई कर रही थी कि चौधरी दिलावर कमरे में आ गया। इसने मुझे देखा और देखता ही रह गया। मैं घबराकर सलाम करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मानो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और दूर खिलाओं में जाने क्या तलाश करने लगी। बस फिर तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया और एक दिन मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा ही लिया। ऐसा फंसाया कि फंसाकर बर्बाद कर दिया और दूध में जहर मिलाकर मुझे पिला दिया। इसी कमरे में जहाँ मैं तुम्हें लेकर गई थी,
और मेरी लाश को रात के अंधेरे में खेतों में फेंक दिया। बानो के लहजे में सिसकारी थी। चौधरी दिलावर की बेवफाई का दर्द था। सुबह जब मेरी लाश खेतों से मिली तो सबने यही समझा कि मैं सुबह हाजत के लिए खेतों में गई हूँ और वहाँ सांप ने मुझे डस लिया होगा, क्योंकि जहरीला दूध पीने से मेरे जिस्म पर जहर फैल गया था। बानो ने अपने होंठों को दांतों तले कुचल दिया। तो क्या तुम्हारे और दिलावर के घर वालों को तुम्हारे और दिलावर के बारे में कुछ पता नहीं था? नहीं, मेरी बर्बादी का सिर्फ दिलावर और मुझे पता है। और अब तुम्हें अपनी कहानी सुनाते सुनाते बानो को एहसास ही न रहा कि कब इसके चेहरे से चादर का नकाब उतर गया। खालिद ने देखा कि बानो भला की खूबसूरत थी। सफ़ेद दूधिया रंगत पर खड़ी सुतवा नाक, भरे भरे होंठ, लेकिन इनमें ज़िंदगी की कोई लाली मौजूद नहीं थी। बेहद उदास और कदरे भूरी और बड़ी बड़ी आंखें। जब वो बेचैनी से पहलू बदलती तो इसकी नाक का मोती चमक उठता। खालिद ने सोचा कि बानो का वजूद जब ज़िंदगी के रानाइयों से भरपूर होगा तो क्या गज़ब ढाता होगा। इन उदास आंखों ने जवानी के न जाने कितने रुपेले ख्वाब देखे होंगे। जब इस परी ज़ात के वजूद में ज़िंदगी की रमक होगी तो एक दिलावर तो क्या, ये हुस्न तो किसी को भी अपना असीर बना सकता है। खालिद बानो की कहानी भी सुन रहा था और दिल ही दिल में इस हुस्न को भी सराह रहा था। मैंने तुम्हें अपनी बर्बादी की दास्तान सुना दी है, बानो ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो जानती थी कि इसका नकाब उतर चुका है, लेकिन शायद अब की बार इसने खालिद से अपना चेहरा छुपाना ज़रूरी नहीं समझा। और अब इस बात का फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि इंसान और मर्द होने के नाते अपने जैसे एक मर्द के जुल्म से तुम मुझे कैसे इंसाफ दिलाते हो, और तुम्हारी अक्लमंदी से क्या किया गया हर फैसला मुझे मंजूर होगा। इतनी बात कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर खालिद के करीब आ गई और खालिद की आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरा कोई भाई नहीं, अगर होता तो अपने इंसाफ के लिए तुम्हें नहीं इसे कहती। खालिद का दिल उछलकर हलक में आ गया। जाने इन आंखों में क्या था कि खालिद इनकार ना कर सका, और इसने बानो से वादा कर लिया कि वो ज़रूर बानो के लिए जो कुछ हो सकेगा करेगा। बानो खुले दरवाजे से बाहर निकल गई और खालिद को महसूस हुआ जैसे बानो के जाते ही वो किसी ट्रांस में से बाहर आया हो। वो अभी तक तमाम सूरत हाल को समझने से कासिर था। इसने जल्दी से दरवाजे से बाहर देखा, लेकिन स्टेशन बिल्कुल खाली था। खालिद बहुत परेशान हुआ कि इतनी जल्दी कोई इंसान कहाँ और कैसे जा सकता है। बानो मर चुकी है और जो कुछ देर पहले कमरे में आई थी वो बानो की रूह थी, और मैं इतने दिन से एक रूह के पीछे फिर रहा हूँ। खालिद को खौफ की झुरझुरी सी आई। इसका मतलब है कि चौधरी दिलावर ने बानो को कत्ल कर दिया है और बानो की रूह इंसाफ के लिए भटकती फिर रही है, और वो इस काम के लिए इसने मुझे चुना है। अगर एक कमज़ोर लड़की ने अपनी मदद के लिए मुझे चुना है तो फिर मुझे भी इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कैसे, अब यही मुझे सोचना है। अनजाना सा खौफ था कि कहीं बानो की रूह फिर से ना आ धमके, लेकिन सुबह होने तक इसने पूरा प्लान जहन में सोच लिया था कि अब इसे क्या करना है। करमदाद, जो चौधरी नूर इलाही का ख़ास मुलाजिम था, ने आकर चौधरी नूर इलाही को खालिद के आने की इत्तला दी। चौधरी जी, स्टेशन मास्टर साहब आए हैं। अरे नए स्टेशन मास्टर साहब, भाई बुलाओ बुलाओ, बैठक में बिठाओ, काफ़ी दिनों से सोच रहा था मुलाकात करने का, चौधरी नूर इलाही ने कहा। करमदीद ने खालिद को बैठक में बिठाया और उल्टे कदमों वापस चला गया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। खालिद ने चौधरी नूर इलाही को अंदर आते देखा तो आगे बढ़कर गर्म जोशी से हाथ मिलाया। वालेकुम अस्सलाम स्टेशन मास्टर साहब। जी मेरा नाम खालिद है, खालिद ने अपना तारुफ करवाया। चौधरी नूर इलाही ने भी गर्म जोशी से खालिद का इस्तकबाल किया। जी जी खालिद बाबू, काफ़ी दिन से सोच रहा था आपसे मुलाकात करने का। आखिर आप हमारे इलाके में नए आए हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको दावत पर बुलाएं। बस जी क्या करूं, आजकल मेरा छोटा चौधरी दिलावर की तबीयत कुछ ठीक नहीं, बस इसी की परेशानी में वक्त ही नहीं मिला आपको बुलाने का। चौधरी ने आते ही लंबी चौड़ी तहमीद बांधी और खालिद के बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कोई बात नहीं चौधरी साहब, इसीलिए मैं खुद हाजिर हो गया हूँ, खालिद ने कहा। वैसे तो फ़ैल आपका ठीक तरह से ख्याल तो रख रहा है ना, चौधरी नूर इलाही ने स्टेशन पर मौजूद खालिद के चौकीदार के बारे में कहा, जिसको चौधरी नूर इलाही ने खालिद की खिदमत पर ममूर किया था। जी जी चौधरी साहब, खालिद मुस्कुराया। चौधरी नूर इलाही खालिद की तवक्का से बढ़कर खुश इखलाक और खुदा तरस इंसान था, मगर वो कितना इंसाफ पसंद था, यही अभी खालिद को देखना था।
جی مجھے پتہ چلا تھا کہ چودھری دلاور کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا پتہ کرنے کے لیے خود حاضر ہو گیا ہوں۔ ادھر ادھر کی باتوں میں خالد نے چودھری دلاور سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اتنے میں کرمداد چائے کی بڑی سی ٹرے میں نماہوں اقسام کی چیزیں لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے بہت ادب سے چائے کی ساری چیزیں میز پر سجائیں۔ اوئے کریم میاں، چودھری نے روبدار آواز سے کرمداد کو مخاطب کیا۔ جی 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 چودھری جی۔ کرمداد چائے کے برتن میز پر لگاتا ہوا ادب سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوئے چائے کے برتن لگا کر چودھری دلاور کو کمرے سے بھیج، اس کو آگ کے چودھری صاحب بلا رہے ہیں۔ جانے کون سے پچھل پیری نے میرے پتر کی جوانی کو گھن لگا دیا ہے، چودھری نور الہی نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ چودھری دلاور آیا تو کافی بجھا بجھا تھا، چہرے پر واضح تھکن اور بیماری کے آثار تھے۔ اونچا لمبا قد کاٹ، گندمی رنگت پر ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو اس کے مردانہ وجاہت کا ثبوت دے رہی تھی، لیکن چہرے پہ چھائی اداسی اس کی بیماری کا حال کہہ رہی تھی۔ خالد نے رسمی سلام دعا کے بعد چودھری دلاور سے تنہائی میں ملنے کی خواہش ظاہر کی اور بتایا کہ اسے چودھری دلاور سے اس کی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا ہے۔ لیکن چودھری نور الہی نے کہا، آپ چودھری دلاور سے میرے سامنے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اب خالد نے چودھری دلاور سے مخاطب ہو کر کہا، چودھری دلاور تم کیا محسوس کرتے ہو؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ مجھے کچھ ڈاکٹر دوست ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کا مسئلہ ان کے ساتھ ڈسکس کروں تو کوئی بہت بہتر علاج ہو سکے۔ خالد نے چودھری نور الہی سے کہا کہ چودھری صاحب مجھے آپ سے بھی کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جو باتیں میں آپ سے کرنے آیا ہوں اس کے لیے بہتر ہے ہم تینوں کے علاوہ یہاں کوئی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ چودھری نور الہی نے بے چینی سے پہلو بدلا اور صوفے سے قدرے آگے بڑھ کر بیٹھ گیا۔ دلاور ابھی کچھ مضطرب لگ رہا تھا۔ آپ نے جو بات پوچھنی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، ویسے بھی ہم تینوں کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہیں، چودھری نور الہی نے کہا۔ جی لیکن بہتر ہوگا کہ کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے تاکہ یہاں ہونے والی گفتگو کوئی سن نہ لے۔ آپ تو ڈرا رہے ہیں۔ چودھری دلاور جو پہلے سے ہی کچھ خوفزدہ لگ رہا تھا اور ڈر گیا اور پریشان نگاہوں سے چودھری نور الہی کی طرف دیکھنے لگا۔ چودھری نور الہی نے دلاور کو آنکھ کے اشارے سے دروازہ بند کرنے کو کہا۔ جیسے ہی دلاور نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور خالد کے پاس آ کر بیٹھ گیا، خالد نے چودھری دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہنے لگا، پہلے وہ اسے یہ بتائے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے یا اس کی طبیعت کسی نوعیت کی خراب ہے، کیونکہ خالد نے اتنے دنوں میں بہت ساری معلومات چودھری نور الہی، چودھری دلاور اور بانو کے گھر والوں کے متعلق اکٹھی کر لی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ چودھری دلاور کسی چیز سے خوف زدہ ہے۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر چیخنے لگ جاتا ہے، اس لیے وہ دلاور کی زبانی سننا چاہتا تھا کہ وہ کس چیز سے خوف زدہ ہے۔ خالد کی تسلی آمیز رویے سے دلاور کا خوف کچھ کم ہوا اور اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بتانا شروع کیا، میں اپنے ارد گرد کسی وجود کی موجودگی محسوس کرتا ہوں۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ مجھے گھر کے وسیع صحن میں کوئی عورت رات کے اندھیرے میں کھڑی نظر آتی ہے، اور کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عورت مجھے آہستہ آہستہ پکار رہی ہے۔ میرے کمرے کی چیزیں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں۔ رات کو کھڑکی بند کر کے سوتا ہوں، لیکن اچانک کھڑکی کے زوردار آواز سے کھل جاتی ہے، اور جب میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو کھڑکی کے باہر کوئی نہیں ہوتا، اور دور کہیں ہوا کے دوش پر کوئی عجیب و غریب اور جانا پہچانا کہکا سنائی دیتا ہوں۔ خالد نے ایک لمبا ہوں کیا اور چودھری نور الہی کی طرف دیکھا۔ چودھری نور الہی مزید بتایا کہ دلاور اکثر راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگ جاتا ہے، بہت ساری درگاہوں پر لے کر گئے ہیں، انگریزی علاج بھی کروایا ہے، شہر بھی لے کے گئے پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، چند دن کے بعد پھر سے وہی حالت ہو جاتی ہے، جانے کون سی چڑیل پیچھے پڑ گئی ہے میرے پتر کے۔ خالد نے چودھری نور الہی کی بات بڑے غور سے سنی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے جو خالد کو راتوں کے اندھیرے میں نظر آتی ہے؟ خالد نے چودھری نور الہی اور پھر دلاور کی طرف دیکھا۔ نہیں، چودھری نور الہی نے بلند آواز میں کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر خالد کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ خالد نے جب دلاور کی طرف دیکھا تو دلاور کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا اور اس نے سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ عورت کون تھی، مگر اپنے اندر کے چوٹ کو اپنے باپ سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ بانو تھی۔ خالد نے یہ بات کرتے ہوئے دلاور کی طرف دیکھا۔ بانو؟ کون بانو؟ چودھری نور الہی نے پوچھا۔
दिलावर बेचैनी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और खालिद की तरफ मुड़कर कहने लगा, लेकिन आप बानो को कैसे जानते हैं? बैठ जाओ चौधरी दिलावर, तुम सुकून से बैठो, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। दिलावर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। चौधरी नूर इलाही चिल्ला उठा, कोई मुझे भी बताएगा कि माजरा क्या है? जी चौधरी साहब, मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। और फिर बानो के साथ होने वाली अपनी पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात के तमाम रवादात चौधरी नूर इलाही और दिलावर को सुना दी। दिलावर की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। वो ये तो जानता था कि बानो की रूह भटक रही है, वो इसे रातों को परेशान करने वाली भी बानो ही है, लेकिन ये नहीं जानता था कि बानो ने अपना इंसाफ करने और इससे बदला लेने के लिए खालिद को चुना है। और बानो की रूह खालिद को सब कुछ बता चुकी है, बल्कि यही नहीं, खालिद को अपने साथ होने वाली ज्यादती पर इंसाफ करने का इख्तियार भी दे चुकी है। चौधरी नूर इलाही का तो ये हाल था कि काटो तो लहू ना। बिल्कुल साकुन सा कभी खालिद और कभी दिलावर को देख रहा था, और फिर एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, क्यों है दिलावरा, ये खालिद बाबू क्या सच कह रहा है? क्या वाकई तूने फैज़ मोहम्मद की कुड़ी का कत्ल किया है? और बाकी जो सब खालिद बाबू ने बताया है, ये सब भी सच है क्या? जी अब्बा जी, दिलावर का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। चौधरी नूर इलाही ने जब सच सुना तो गुस्से से भफर गया और बैठे हुए जोर से सोफे के बाजू पर मुक्का मारते हुए कहा, ओए बेगैरता, ये तूने क्या किया? तूने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ओए, हमारी सत्तों पुश्तों में से किसी ने ऐसी बेगैरती नहीं की। ये काम करते हुए तुझे ज़रा गैरत ना आई कि पिंड की बहू बेटियाँ अपनी बहू बेटियाँ होती हैं। अब जब बरादरी को पता चलेगा, सारे पिंड को पता चलेगा, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तूने प्यो दादे का शिमला मिट्टी में रोल दिया है। चौधरी नूर इलाही ने अपना सर पकड़ लिया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ अब्बा जी, दिलावर ने कहा, और खालिद बाबू, जब से मुझसे ये गुनाह सरदर्द हुआ है, मैंने एक दिन भी चैन से नहीं गुजारा। मेरे कानों में हर वक्त बानों के कह के गूंजते रहते हैं और रातों को मुझे आवाज़ें देती है। इसकी परछाइयों के नाग हर वक्त मुझे डसते रहते हैं। दिलावर की आंखों से आंसू बहकर इसके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। इसने अपने बालों को जोर से मुट्ठियों में जकड़ रखा था और फिर एकदम से वो अपनी जगह से उठा और खालिद के करीब नीचे कालीन पर बैठ गया और खालिद के घुटने पर हाथ रख कर बोला, खालिद बाबू, बानो ने आपको अपना मुंसिफ बनाया ना, तो आपको इख्तियार भी दिया है कि आप जो फैसला करोगे वो इसे मंजूर होगा। तो खालिद बाबू, आप बानो की रूह को करार दे दो और मुझे मार डालो। बानो के साथ की गई ज्यादती, बेवफाई मुझे चैन से जीने नहीं देगी। बानो के जाने के बाद मुझे आज एहसास हुआ कि मुझे इससे कितनी मोहब्बत थी। दिलावर खालिद के सामने सिसक रहा था। मोहब्बत? तुम इसको मोहब्बत कहते हो? यह मोहब्बत नहीं, हवस है। दिलावर बाऊ, मोहब्बत करने वाली इज्जतों के लुटेरे नहीं होते, बल्कि औरत की इज्जत को अपने एतमाद की चादर से ढांप कर अपनी बावकार मर्दानगी का सबूत देते हैं। आप सच कहते हो खालिद बाऊ, लेकिन मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। किसी कमज़ोर लम्हे की दस्तरस ने मुझे घेर लिया था। बानो से कहो कि वो मुझे माफ़ करे। अगर आप जहर का प्याला भी पीने को कहोगे तो मैं पी लूँगा, पर आप बानो से कह दो कि वो मुझे इस अजियत भरी ज़िंदगी से निजात दे दे। दिलावर सुलग रहा था। ऊपर बैठो चौधरी दिलावर, खालिद ने कहा। खालिद बाबू, क्या फैज़ मोहम्मद को और इसके बाकी घर वालों को इस बात का पता है? चौधरी नूर इलाही ने पूछा। नहीं, फैज़ मोहम्मद और इसके घर वालों को क्या, इस पूरे गांव में किसी को भी इस बात का पता नहीं है। सब यही समझते हैं कि बानो को सांप ने डस लिया होगा, क्योंकि दिलावर ने अपनी हवस पूरी करने के बाद बानो को जो दूध पिलाया था इसमें जहर था। चौधरी नूर इलाही ने सोफे की पुश्त से सर टका लिया और फिर एकदम आगे बढ़कर बेचैनी से बोला, तो फिर अब क्या होगा खालिद बाबू? अगर बानो ने फैसले का इख्तियार तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हें अपनी इज्जत का वास्ता देता हूँ कि मुझे और मेरे पूरे ख़ानदान को इस बदनामी से बचा लो। तुम जो कहोगे करने को तैयार हूँ, जितनी दौलत चाहोगे देने को तैयार हूँ, पर मेरे पुत्र को कोर्ट कचहरी के चक्रों में से बचा लो। अगर पिंड में पुलिस आ गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। इर्द गिर्द के पिंडों में भी बड़ी बदनामी हो जाएगी और सियासी साख भी खतरे में पड़ जाएगी। तुम तो जानते हो कि चौधरी शमशेर, जो मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, हर साल इलेक्शन लड़ता है। हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। चौधरी नूर इलाही चेहरे पर बेचारगी लाते हुए कहा,
चौधरी साहब, बानो ने फैसले का इख्तियार अगर मुझे दिया है तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि इसको इंसाफ मिले। और मेरा इंसाफ ये कहता है कि चौधरी दिलावर को सनोबर से शादी करना होगी और आप सबको इस हवेली में वही इज़्ज़त और मर्तबा देना होगा जो आपकी दूसरी बहुओं को हासिल है। और दिलावर, तुम्हें भी सनोबर से पूरी तरह इंसाफ करना होगा और इसे वही इज़्ज़त और मोहब्बत देना होगी जो अगर बानो तुम्हारी ज़िंदगी में आती तो तुम इसे देते। सनोबर से शादी? दिलावर ने हैरत से कहा, यानी बानो की बहन से शादी? तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी कम्मी की बेटी को इस घर में बहू बना कर ले आऊं? ये तुम क्या कह रहे हो बहू? ऐसा कैसे मुमकिन है? चौधरी नूर इलाही ने गुस्से से कहा। जब आपका बेटा एक कम्मी की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस सकता है, इससे अपनी हवस को पूरी करके इसे जहर दे सकता है, तो फिर एक कम्मी की बेटी के सर पर इज्जत की चादर रखने में कैसी दुश्वारी? ये तो नेकी का काम है और आपकी खुदा तरसी और इंसाफ पसंदी को तो इर्द गिर्द बल्कि सभी गाँव में चर्चे हैं। और जब इंसाफ करने और खुदा तरसी करने का वक्त आया है तो ये दोगलापन कैसा? माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको अपने बेटे की ज़िंदगी अजीज़ है तो दिलावर को सनोबर से निकाह करना ही पड़ेगा, वरना मत भूलें कि बानो की बेकरार रूह जो यूं दर बदर भटक रही है वो सारी ज़िंदगी दिलावर का पीछा न छोड़ेगी और ना ही दिलावर को किसी और का होने देगी। खालिद ने चौधरी नूर इलाही की तरफ चुभती हुई निगाहों से देखकर कहा, लेकिन क्या सनोबर से शादी करके बानो की रूह को करार मिल जाएगा और इसकी रूह की नाग मुझे डसना छोड़ देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि बानो की रूह को आपको ये फ़ैसला मंजूर होगा? अगर बानो को आपका ये फ़ैसला पसंद न आया तो? चौधरी दिलावर ने अपने शक का इजहार किया। ये तो मैं नहीं जानता कि बानो को मेरा फ़ैसला मंजूर होगा या नहीं, पर मुझे यकीन है जब वो सनोबर को तुम्हारे साथ खुश देखेगी तो इसकी रूह को करार आ जाएगा, क्योंकि बानो सनोबर से बहुत प्यार करती थी और फैज़ मोहम्मद सनोबर की शादी साथ वाले गांव में किसी बूढ़े से कर रहा है जो सनोबर से उम्र में 35 साल बड़ा है। अगर वो दिलावर की दुल्हन बनकर इस घर में आ जाएगी और बानो अपनी बहन को खुश और सुखी देखेगी तो मुझे यकीन है कि बानो को मेरे फैसले पर एतराज़ ना होगा। लेकिन क्या गांव वाले बातें नहीं करेंगे कि चौधरी नूर इलाही ने बाकी बहुओं तो ऊंचे घर से लाए हैं और दिलावर के लिए गरीब कम्मी की बेटी? चौधरी नूर इलाही ने मजीद कहा, नहीं, बल्कि आपकी खुदा तरसी की मिसालें कायम हो जाएंगी कि चौधरी नूर इलाही ने अपने कम्मी की बेटी को अपनी बहू बना लिया। ये सब मामलात आप कैसे हल करते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इस गांव के चौधरी हैं, सारा गांव और सारा घर आपका हुक्म मानता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को संभाल लेंगे और अपनी समझदारी और इंसाफ पसंदी की बिना पर बेहतर फैसला करेंगे। अब इजाज़त चाहूँगा। ये कहकर खालिद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दिलावर ने भी उठकर खालिद से हाथ मिलाया। वो कुछ खोया खोया सा था। चौधरी नूर इलाही ने खालिद से हाथ मिलाते हुए कहा, खालिद बाऊ, इन सब बातों का किसी और को पता ना लग पाए, इसको आप मेरी दरख्वास्त समझ लें। आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, ऐसा ही होगा, खालिद ने कहा और लंबे लंबे ढक भरता हुआ कमरे से निकल गया। आज काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन हवेली की तरफ से मुकम्मल खामोश थी। खालिद को देखना था कि चौधरी नूर इलाही अपने इंसाफ की पटारी में से इनकार का नाग निकालता है या जादू की वो छड़ी जिसको घुमाने से सनोबर दिलावर को पहलू में दुल्हन के रूप में सज कर बैठेगी। खालिद गुस्ल खाने में नहा रहा था कि इसे बाहर से किसी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। कोई आया था शायद, जो तुफैल से खालिद के बारे में पूछ रहा था। कौन आया तुफैल? खालिद तौलिए से बालों को रगड़ता हुआ गुस्ल खाने से बाहर आ गया। अरे तुम करमदाद, कहो भाई कैसे आए? चौधरी साहब तो ठीक है, खालिद ने करमदीन से पूछा। जी खालिद बाबू, चौधरी साहब ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि आज शाम चौधरी दिलावर के निकाह है तो आप 6 बजे तक पहुंच जाना। निकाह? चौधरी दिलावर का? किससे? खालिद ने हैरत से पूछा। वो जी अपना फैज़ मोहम्मद है ना, जो चौधरी साहब की ज़मीनों की देखभाल करता है ना, इसकी बेटी से। इसकी बड़ी बेटी तो चंद साल पहले ही फौत हो गई थी। फैज़ मोहम्मद की जी 2 बेटियां थीं, वो दोनों बहनें जुड़वा थीं और इसी वजह से शक्ल सूरत में भी ना जी रत्ती फ़र्क नहीं था। हमें तो जी कभी पता ही ना चल सका कि इनमें से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी, बानो कौन है और सनोबर कौन। करमदाद की ज़ुबान का स्कूटर स्टार्ट हो गया था। अच्छा, खालिद ने यूं अच्छा पर जोर दिया जैसे वाकई ही इसे बिल्कुल अनजान था और इसे अभी पता चला था। ठीक है, चौधरी साहब से कहना कि 5 बजे की ट्रेन
जब स्टेशन से गुजर जाएगी तो फिर इसके बाद मैं फारिग होऊंगा, तब हाजिर हो जाऊंगा। करमदाद अच्छा जी कहकर वापस चला गया। शाम को जब खालिद हवेली पहुंचा तो हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। सनोबर और दिलावर का निकाह फैज़ मोहम्मद के छोटे से घर के आंगन में ही हुआ था। फैज़ मोहम्मद और इसके घर वालों की खुशी से पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते थे और वो और इसके घर वाले चौधरी नूर इलाही, दिलावर और इसके भाइयों के आगे पीछे फिर रहे थे। खालिद ने महसूस किया कि चौधरी नूर इलाही, दिलावर और इसके घर वालों के चेहरों पर एक इत्मीनान था। लगता था कि चौधरी नूर इलाही ने अपने बेटों और घर वालों को सारी सूरत हाल बता दी थी और इनको बता दिया था कि अगर दिलावर की ज़िंदगी अजीज़ है तो इस फैसले को खुशी से कबूल करना होगा। और सबने ऐसा ही किया। किसी के चेहरे पर कोई नदामत या गुस्सा नहीं था। खालिद ने तन्हाई में मिलते ही चौधरी नूर इलाही और दिलावत को शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने आज सनोबर को नहीं बल्कि बानों को इज्जत दी है। कोई भी इंसान छोटा या बड़ी नहीं होता, हम सब मुसलमान हैं और हमारे मज़हब में हर मुसलमान पर अपने दूसरे मुसलमान भाई का जान, माल और इज़्ज़त आबरू हराम है। आपने बहुत अच्छा किया, मेरे फैसले की लाज रख ली। रात खालिद देर से स्टेशन वापस आया। जाने क्यों आज इसे डर था कि कहीं बानों से सामना न हो जाए, क्योंकि इसकी भटकती हुई रूह को भी सनोबर और दिलावर की शादी का पता चल गया होगा। लेकिन रात सुकून से गुजर गई और कोई वाक़या पेश न आया। बानों की रूह को भी शायद करार आ गया था। अगले दिन चौधरी नूर मोहम्मद की तरफ से दिलावर और सनोबर के वलीमे की शानदार दावत का एहतमाम किया गया और इर्द गिर्द के गाँव के काफ़ी लोग और वडेरे भी इस तकरीब में शामिल हुए। चौधरी दिलावर बहुत पुरसुकून लग रहा था। इसने खालिद को बताया कि काफ़ी दिन से इसे रात को बानों की रूह दिखाई नहीं दे रही और ना ही इसे कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं। खालिद ने मुस्कुराकर दिलावर को तसल्ली दी और स्टेशन वापस आ गया। रात तकरीबन आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, लेकिन खालिद को नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर करवटें बदल रहा था। सुबह के करीब इसकी आंख बिल्कुल अभी लगी ही थी कि खालिद को महसूस हुआ कोई कमरे की खिड़की को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहा है। खालिद की आंख खुल गई। इसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा तो इसका एक पट खुला था, जबकि खालिद ने हवा में खुनकी बढ़ जाने की वजह से रात को खिड़की खुद बंद की थी। पहले तो इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब खुद उठकर खिड़की के पास गया तो हैरान रह गया। खिड़की के दूसरे पट पर एक कागज़ चिपका हुआ था, जिस पर मोटे हरूफ में शुक्रिया के अल्फाज लिखे थे और साथ में ये लिखा था कि मुझे तुम्हारा फ़ैसला पसंद आया, मुझे तुम्हारा फ़ैसला मंजूर है। खालिद ने झपट कर वो कागज़ उतारा और एक बार फिर इस पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ा। शुक्रिया, मुझे तुम्हारा फ़ैसला मंजूर है। खालिद ने खिड़की पूरी खोल दी और सुबह के मलगजे अंधेरे में से इसे दूर कोई साया काली चादर में लिपटा हुआ वापस जाता नजर आया। खालिद को यकीन था कि बानों की रूह को करार मिल गया है। तहरीर फरहाना कियानी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।